काशिफ, audible? Yes, sir. Okay. So now let me do that. Go to open the PPT. So first and follow. Anyone having any doubt in computing first and follow? No, sir. किसी को डाउट है बताएं फर्स्ट एंड फॉलो में हाउ वी कैन कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो. सर वो रिकर्सिव वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा. कौन सा? सर वो रिकर्सिव वाला जो था, लेफ्ट रिकर्सिव. लेफ्ट रिकर्सिव. ओके. यस सर. So let me just do it here. I think one problem. Right. So left recursive is what? A grammar is said to be left recursive, or we can say a product is said to be production is said to be left recursive if the leftmost symbol on the right hand side is same as the symbol present on the left hand side. तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे S to A, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? A. तो राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल क्या है बताइए? In the right hand side, left most symbol is what? A. Yes sir. And right hand left hand में क्या S है? तो S is not equal to Yes A. sir. नहीं है ना? It means this production is not left recursive. Now compute A to B, or consider A to AB. So for A to AB, then again leftmost symbol in the right hand side क्या है बताइए? बोलना बेटे. A B not equal. A है and A Yes is sir. not equal to capital A. This is also not left recursive. Now A to AD. So here leftmost symbol in the right hand side is what? A, which is same as symbol in the left hand side. That this is left recursive. And here B to B not same, not left recursive. C to G also not left recursive. So a grammar is said to be left recursive if it has at least one production is left recursive. So अगर से एक production left recursive हो गया, then we can say that this grammar is what? Left recursive. Okay? Yes sir. Clear? So अब हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया? This grammar is not free from left recursion. तो इसमें left recursion है. Now because we have to compute first and follow, before computing first and follow, the grammar must be free from left recursion. तो लेफ्ट रिकर्शन को कैसे रिमूव करते हैं? तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है A to A, कैसे रिमूव करेंगे इसको? हम रिमूव करेंगे इस तरीके से A to, इसके बाद क्या है? D है, तो D A डैश एंड देन A डैश टू E, इस तरीके से करते हैं. तो अभी देखिए हम आगे अभी करके बताएंगे आपको. यहाँ पे S to A में कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं था. A to AB, अब देखिए यहाँ पे क्या है? AB, तो here you can see this one. तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो AB A डैश एंड D A डैश. तो यहाँ पे क्या आया? A to D A डैश, that is this one, and AB A डैश. तो AB A डैश आ गया. Now A डैश to what? A डैश to D A डैश एप्सिलॉन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D A डैश एंड देन एप्सिलॉन. तो ये है कैसे हम दूर करते हैं. तो पहले जो हमारे पास लेफ्ट रिकर्शन था इसको, इसके बाद क्या बचा हमारे पास? डी बचा है, दैट इज डी ए डैश. एंड इसमें क्या है? ए बी सिर्फ है. यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी ए डैश. अब क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल ए डैश, तो ए डैश को क्या लिख सकते हैं हम? ए डैश टू जो हमारे पास डी था, डी ए डैश एंड एप्सिलॉन. ठीक है? क्लियर? Yes sir. So this is the process to how to remove left recursion. और इसके लिए हमने एक अलग से लेक्चर लिया, पीपीटी बनाई है, उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया. ठीक है? तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं पर्टिकुलरली ये टॉपिक ही सॉल्व कर पाए. तो आफ्टर रिमूव वी कैन इजीली कंप्यूट लेफ्ट एंड फर्स्ट एंड फॉलो ऑपरेशन.
Okay, so this is all about. Now today we discuss uh, regular expression. I think you have discussed this topic in automata, theory of automata. पढ़ चुके होंगे आप, बट अभी हम फिर से पढ़ेंगे. Let me just bootstrapping is a process to create a new compiler. It is used to create a cross compiler. तो bootstrapping से हम क्या करते हैं, क्रॉस कंपाइलर को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं. तो क्रॉस कंपाइलर कैन बी डिजाइन विद द हेल्प ऑफ process involved in bootstrapping. It is widely used in the compilation development. Used to produce self-hosting compiler. Self-hosting compiler means a type of compiler that can compile its own source code. Bootstrap compiler is used to compile the compiler. ठीक है, compiles the compiler. अभी देखेंगे कैसे करता है ये. Example से, a compiler can be characterized by three language: source language, target language and implementation language. तो compiler को हम define कर सकते हैं क्या, source language, target language and implementation language. मतलब टारगेट लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमको मशीन एम, यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मशीन एम है, हमको इसके लिए क्या बनाना है, कंपाइलर बनाना है, इस पे हमको रन करना है इस मशीन पे. और जो लैंग्वेज यूज किया हमने, मान लेते हैं हमने यहाँ पे सी यूज किया, और हाई लेवल लैंग्वेज जो थी अब ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज, ठीक है. और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, मान लेते हैं आपका सी प्लस प्लस, इस पे कंपाइलर लिख रहा है. तो अब क्या होगा, इस में देखिएगा, the T diagram shows a compiler SEIT for source language X, target T implemented in language I. जैसे SIT T diagram यूज कर. I'm audible? Yes बेटे, मेरी आवाज क्लियर है अबद? Yes. ओके ओके. तो इसका मतलब क्या है, क्रिएट ए कंपाइलर TMM. इसका मतलब इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये हुई कि मशीन M के लिए और एम लैंग्वेज इंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, इसी का मशीन कोड, और सोर्स लैंग्वेज क्या है हमारी सी है. तो जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले कंपाइलर बना होगा, पहले हमें एक लैंग्वेज डेवलप की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप, तो उसके लिए कौन सा कंपाइलर होगा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट कंपाइलर. सबसे पहले क्या है, ये हमारा फर्स्ट कंपाइलर है. तो उस कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए हमें कुछ कंपाइलर चाहिए होगा, क्योंकि वो सबसे पहली लैंग्वेज है. तो उसके लिए क्या किया गया था हमने, उसके लिए कोई जो है कोई हाँ. तो CMM का मतलब ये है कि अब हमने क्या किया, अगर से ये बहुत ही पहली लैंग्वेज है. अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपने सी लैंग्वेज डेवलप की, अब सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए. बट कंपाइलर भी तो किसी लैंग्वेज में डेवलप होगी ना, कंपाइलर को भी लैंग्वेज किसी लैंग्वेज में डेवलप करना पड़ेगा. तो अभी कोई हमारे पास लैंग्वेज है नहीं, तो हमने क्या किया, उस मशीन का मशीन कोड ही यूज कर दिया एज ए कंपाइलर. तो यहाँ पे क्या है, सी इज ए सोर्स लैंग्वेज, एम इज ए इम्प्लीमेंटिंग लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज, और एम क्या है, मशीन. इसे कैसे करेंगे देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए CMM, ये मतलब इसका है टी डायग्राम. नाउ क्रिएट ए कंपाइलर इन C++ सोर्स लैंग्वेज दैट इज यूजिंग सी कंपाइलर और मशीन एन. इसका मतलब क्या हुआ कि सी लैंग्वेज हमने यूज की, यहाँ पर सी लैंग्वेज यूज की, उसका मशीन एम के लिए, और इसका कंपाइलर किसमें है, उस मशीन कोड में ही, इस लैंग्वेज के मशीन कोड में ही इंप्लीमेंटेड. अब हमने क्या यूज किया,
एक कंपाइलर हमको बनाना है C++ का, बनाया मैंने, और फिर हमने क्या यूज किया, सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, हम कंपाइलर बना रहे हैं किसमें, C++ का कंपाइलर बन रहा है हमारा, और किस लैंग्वेज में डेवलप हो रहा है, सी में डेवलप हो रहा है, और किस पे रन करेगा, मशीन एम पे रन करेगा। तो मान लेते हैं मशीन एम हमारी विंडो है, अब मशीन एन हमारी क्या है, लाइनक्स और एंड्रॉइड जो मान लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ टी डायग्राम। तो बेटे दिस इज द लैंग्वेज वी आर क्रिएटिंग अ कंपाइलर, this is the language in which a compiler is created, and this is the machine on which this language is running, ये रन करेगी। ठीक है, क्लियर है, डायग्राम का नोटेशन क्लियर है नहीं क्लियर, बताएं। यस यस या नो। जैसे एस टी एम, इसकी मीनिंग क्या थी, इसकी मीनिंग ये थी कि वी आर डिजाइनिंग ए कंपाइलर फॉर द लैंग्वेज एस, दिस कंपाइलर इज रिटन इन लैंग्वेज सी, एंड दिस प्रोग्राम या दिस लैंग्वेज विल रन ऑन मशीन एम। क्लियर है काशिफ। यस सर। ये टी डायग्राम हम हमारे पास ये है। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास दो कंपाइलर है, एक तो कंपाइलर लिखा हुआ है सी के लिए बना हुआ है, जो कहाँ रन कर रहा है, मशीन एम पे। नाउ वी हैव कंपाइलर C++ और C++ which is written in machine in language C or machine N. Now is it possible to run this programming language C on machine M? ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास कंपाइलर लिखा हुआ है मशीन सी लैंग्वेज का, जो रन कर रहा है मशीन एम पे, और एक C++ लैंग्वेज है जिसका कंपाइलर सी लैंग्वेज लिखा हुआ है और ये रन कर रही है मशीन एन पे। तो नाउ क्या ये पॉसिबल है हमारा कि हम इस C++ की जो प्रोग्राम लिखा है हमने, उसको मशीन एन के बजाय मशीन एम पे रन करा सकें? नो, वी कैन नॉट डायरेक्टली रन दिस C++ लैंग्वेज ऑन मशीन एम, बिकॉज इन मशीन एम पे वही कोड रन होगा जो क्या है, इसका कंपाइलर किस में लिखा हो, मशीन लैंग्वेज में लिखा हो, इसके मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। नाउ हेयर द रोल ऑफ क्रॉस कंपाइलर कम, यहाँ पे क्रॉस कंपाइलर अपना रोल प्ले करता है, कैसे, अभी देखिए। तो यहाँ नाउ रन C++ और मशीन एम, तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, इससे पैसे चलता हूँ। तो पहले C++CN ये होगा, इसको हम कहाँ पास करेंगे, इसको पास करेंगे हम किस पे, की मशीन एम पे। नाउ अब क्या हुआ, अब जो ये सी कंपाइलर है, अब देखिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से C++ मशीन एन पे रन कर रहा है जिसका कंपाइलर सी में लिखा हुआ है। नाउ दिस सी इससे मैच किया, तो अब इस मशीन एम ने इस कंपाइलर को क्या किया, मशीन लैंग्वेज एम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मशीन लैंग्वेज एम में कन्वर्ट होने पर ये किस में रन कर जाएगा, इन में कर जाएगा। क्लियर है, तो this means this machine n is used to compile the compiler, machine m is sorry machine m is used to compile the compiler। तो इसने क्या किया, कंपाइलर लिया C++ का, उसको कंपाइल किया किसमें, मशीन लैंग्वेज में, m की मशीन लैंग्वेज में, और उसको एक्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द कंपाइलर which is written for C++ in C language or machine n. This is a compiler for written in C language in machine m or machine m. Now we run this compiler into this machine. तो क्या होगा, ये सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेड है, तो इससे क्या मिलेगा हमको, सी का कोड मिल जाएगा। अब ये सी कोड किसमें काम कर जाएगा, इसके लिए कंफर्टेबल है, बिकॉज वी हैव अ कंपाइलर एम विच इज रिटन इन द मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज और सी लैंग्वेज। इसका कंपाइलर इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, एम पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, नाउ C++ कोड कैन रन ऑन मशीन। इज क्लियर? यस, बताएं बेटे। यस सर। So this is how bootstrapping is done, or we can say cross compiler working is done. यस सर। तो
bootstrapping. These are references. So I use these references. You can use these references. ये हमारा bootstrapping हो, ठीक है? Now next question है, you can see my screen, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so high level language क्या होती है? It is allowed programming to write a instruction language that is easier to understand. It means it is human like language. It is human like language. जैसे हिंदी में हम बात करते हैं या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, तो जैसे अभी सी प्लस प्लस में क्या है, इफ, वाइल, डू, ठीक है, इंटीजर तो आई एन टी, एफ एल फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, डबल कैरेक्टर को सी एच ए आर लिखते हैं, तो इट इज रीडेबल ह्यूमन लाइक लैंग्वेज. So high level language allows programmer to write instruction in language that is easier to understand than low level language, because low level language is what? It is a streams of zeros and ones, string of zeros and ones. So it is very difficult to understand zero and one. भाई जीरो वन लिखा हुआ है तो जीरो कॉपी के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, पेस्ट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, मूव के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, अगर वो इंस्ट्रक्शन जीरो वन में लिखा हुआ है कोड फॉर्मेट में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. फॉर दैट वी नीड हाई लेवल लैंग्वेज. And then translators are needed to translate program written in high level language to machine code or computer understand, so that computer can understand. इसका मतलब क्या हुआ? Translator, I told you, it means what? Translator का मतलब compiler भी हो सकता है, assembler भी हो सकता है और interpreter भी हो सकता है. So translator is a generic term. It is a generic term that can be used for these three things: compiler, assembler and interpreter. Then these languages are close to natural language. The spoken and written languages मैंने बता चुका हूं मैं आपको अभी. For example, Python, C++, Java, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, all these are the examples of high-level language. Source code is the term given to the set of instructions that are written in human readable programming language. The code must be translated into machine code before a computer can understand and execute it. So means we all know computer can understand only zeros and ones. It can talk only zeros and ones. अगर से कोई zeros और one में बात करेगा तो वो बात करेगा lower level. तो आप जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं सी प्लस प्लस में, वो क्या होती है? वो जीरो वन में कन्वर्ट होती है. उसके बाद कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है कि हमको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मूव करना है, या ये वेरिएबल का टाइप क्या है, फ्लोट है, इंटीजर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस बेटे. Yes, sir. So now this is the meaning of high level language. Lexical analyzer architecture. The main task of lexical analyzer is to read the input characters in the code and produce token. इसको तो मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्सिकल एनालाइजर. ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये टोकन प्रोड्यूस करता है. इट रिमूव्स व्हाइट स्पेस, कमेंट्स, हैश टाइप ऑफ थिंग्स लाइक मैक्रोज, ठीक है, हैश डिफाइन, ये सब चीजें करता है. तो क्या करता है? गेट द नेक्स्ट टोकन is a command which is sent from the parser to the lexical analyzer. On receiving this command, the lexical analyzer scan the input until it finds the next token. It listen to ये figures का देखिए यहाँ पर. तो first parser issue a command. That command is known as get next token. That is passed to lexical analyzer. Lexical analyzer क्या करता है? उसको एनालाइज करके उसमें से टोकन को जनरेट करता है. Then again pass to parser and parser do the rest of the part. के बाद क्योंकि 6 फेज मैंने बताया है, लेक्सिकल एनालाइजर है आपका, फिर सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, कोड ऑप्टिमाइजेशन, जनरेशन टेक्निक है, 3 एड्रेस कोड जनरेटर है, ये सारी चीजें बताइए आपको. इट इज वेरी फर्स्ट फेज द कंपाइलर डिजाइनिंग, एंड फॉर दिस लेक्सिकल एनालाइज वी कैन यूज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, तो आप लोगों ने डीएफए पढ़ा होगा ऑटोमेटा. मैं पढ़ा चुका हूँ शायद. क्यों पढ़ाया नहीं? पढ़ाया मैंने, बताएं बेटे. पढ़ा चुके हैं. ये मैं पढ़ा चुका हूँ. यस, ये मैं पढ़ा पढ़ा चुके चुका हूँ. हाँ, दिस आई हैव कंप्लीटेड. यस, ये हमारे पास सारी चीजें हैं. देन 13 आर ए प्लस बी स्टार. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी कैन राइट ए प्लस बी हाउ मेनी टाइम्स? देखिए, सबसे पहले स्टार का मतलब क्या होगा? ए स्टार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले होता है ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ऐसे होता है इसका मतलब. ठीक है, तो ऐसे ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? है ना? तो ए प्लस बी का स्टार मतलब वी कैन राइट ए प्लस बी का स्टार मीन्स ए प्लस बी 0, ए प्लस बी 1, ए प्लस बी 2. तो ए प्लस बी का 0 मतलब क्या है? स्टाइला. देन ए प्लस बी का 1 मतलब क्या? ए एंड बी. देन ए बी 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 बी, ये सब आ जाएगा.